ओके बेटा ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਆਫ ਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਸ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵੇਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਸਮ ਆਫ ਦ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੇਵਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਔਰ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਆਫ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਓਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸਰਟਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦ ਆਈ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਦੋ ਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਵਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸਾਈਨ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋਣਾ, ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ E ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ E1 + E2, E1 + E2 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ E1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ E2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ω1 ਔਰ ω2 ਇਹ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਵੇਵ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਲੈ ਲਈਆਂ, ω ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੂ ਵੇਵਸ ਨੇ ਇਹ ਅਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸੇਮ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ω1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ω ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਾਈਨ ਹੈ cos of ωt - φ1, cos A - B ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ cos A cos B + sin A sin B। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਵੀ cos ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ cos A cos B + sin A sin B, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ cos ωt ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ cos ωt ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ cos ωt ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਾਕੀ E01 ਅਤੇ cos of φ1 + E02 cos of φ2, ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ sin ωt ਇੱਥੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ φ1 φ2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ E01 E02 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ E0 cos φ, ਉਹ ਹੈਗੀ E0 sin φ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ E0 cos φ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ E0 sin φ, ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ E = ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। E = cos of ωt। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ E0 cos of φ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ sin of ωt। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ E0 sin of φ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ E0 cos of ωt cos of φ + sin of ωt sin of φ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ E0 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ E0 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
तो देखो ये की बन गया cos A cos B प्लस sin A sin B, वट इज़ दिस इज़ cos A माइनस B। तो तुसी की कीता है इस इक्वेशन तो तुसी हुण इस इक्वेशन ते पहुँच गए हो, ठीक है। अल्टीमेटली असी की कीता, असी यह बोलिया है कि दो वेव्स नूं जदों असी सुपर इंपोज करते हैं सेम फ्रीकुएंसी असी लै ली तो फिर दोबारा एक जी वेव ही तुहाडे कोल जिहड़ी है वो बन रही है। असी यह चीज़ है और वो जी फ्रीकुएंसी है वो असी जी अकॉर्डिंग जी है उसी शो की है। तो हुण वैल्यूज़ साडे कोल आनी चाहिए आ E0 दी ते दूजी असी वैल्यू निकालनी है फाई दी, है ना। ये दो वैल्यूज़ असी अगर निकालांगे तो फिर साडे कोल जिहड़ा कंप्लीट है वो सानू मिल जाएगा। तो E0 की वैल्यू निकालन दे लई असी की करांगे, तुसी की कीता होया वा, तुसी इत्थे सी ना तुहाडे कोल E0, इत्थे भी E0 है, ये तुसी किहदी जगह ते रिप्लेस कीता है, ये तुसी रिप्लेस कीता होया जे बेटा कॉज ऑफ ओमेगा टी सॉरी E01 cos of phi 1 sorry phi 1 plus E02 sin of phi 2। ये तुसी लिखिया सी इनू E0 cos of phi, इत्थे भी cos आना, दिस इज़ cos। दूजी गल तुसी E01 sin of phi 1 प्लस E02 sin of phi 2, इन तुसी लिखिया सीगा E0 sin of phi। ए दो इक्वेशनस मैं लिखिया हुई हैं इत्थे लिख ली। हुण तुसी वैल्यूज़ मैं तुहानूं बोलिया सी निकालनी है असी E0 दी और फाई दी। अगर E0 की वैल्यू तुसी निकालनी है तो तुसी की करोगे, स्क्वायर ऐड करोगे, सिंपल स्क्वायर ऐड करने नाल की होएगा cos स्क्वायर फाई sin स्क्वायर फाई जो ऐड होणगे तो 1 हो जाएगा, तुहाडे कोल सिर्फ E0 जिहड़ा बचेगा, मतलब इलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। तो ये भी देखो बेटा यही किया है, इस पूरे चीज़ ऐप वाली पूरी चीज़ का स्क्वायर प्लस इधरों एदा स्क्वायर ये इक्वल स्क्वायर ऐड मतलब बस किया होया इन्हों। तो इनू तुसी जो खोलते हो तो तुहाडे कोल आंदा है E01 cos of phi 1 प्लस E02 cos of phi 2 द होल स्क्वायर प्लस E01 sin of phi 1 प्लस E02 sin of phi 2 ये पूरे दा स्क्वायर। तो बेटा जो असीं स्क्वायर करांगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सिमिलरली इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके नाल साडे कोल एक तो phi 1 का स्क्वायर होएगा कॉज वाला, साइन वाले का भी, सिमिलरली कॉस स्क्वायर phi 2 का, साइन स्क्वायर phi 2 ए वाली टर्म भी आएगी, वो मिक्स टर्म आएगियाँ वही जी ए बी वाली cos phi 1 cos phi 2 नाल 2 लगा होया, तो सिमिलरली sin phi 1 sin phi 2 वाली जी टर्म है साडे कोल इत्थे आएगी। तो जो तुम देख सकते हो कि cos स्क्वायर phi 1 प्लस sin स्क्वायर phi 1 जिहड़ा है भी तुहाडे कोल 1 आ जाएगा। तो इस तरीके नाल E0 स्क्वायर जिहड़ा है वो तुहाडे कोल पूरी जी वैल्यू है तुहाडे कोल इत्थे आ रही है। इस तो इलावा हुण क्योंकि स्क्वायर है तो इधर वाली साइड की होएगा जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो वही जिहड़ा इधर जाके जिहड़ा अंडर रूट है वो तुहाडे कोल बन गया। तो उस तो बाद फिर इत्थे बेटा तुहाडे कोल अगर तुसी हुण हाँ हुण तुसी E0 की वैल्यू निकाल ली है, हुण तुसी वैल्यू निकालना चाहते हो फाई दी वैल्यू असी नॉर्मली देखो फाई दी वैल्यू निकालना चाहते हैं। फाई दी वैल्यू किस तरह निकलेगी, अगर इस चो किसी तरीके E0 इलिमिनेट हो जाएगा, E0 किस तरह इलिमिनेट होएगा, दोवां नूं डिवाइड करांगे असी साइन बाय कॉस करांगे तो तुहाडे कोल की बन जाऊगा tan phi इज़ इक्वल टू उपर वाली टर्म ए वाली टर्म डिवाइडेड बाय ए वाली टर्म तुहाडी। इस तरीके नाल जिहड़ा है ये तुहाडे कोल tan phi जिहड़ा है वो तुहाडे कोल आ जाएगा। तो बेटा एक इत्थे कन्फ्यूजन हैगी है कि ये जिहड़ा 2 है वो इत्थे 2 इत्थे आना ही आना है, तो यह तुहाडी बुक दे विच मे बी प्रॉब्लम है, तुसीं ठीक कर लेना। तो क्योंकि जी आई है वो एवरेज इंटेंसिटी नूं डिटेक्ट करती है, तो इंटेंसिटी की हुंदी है, इंटेंसिटी की वैल्यू देखो बेटा तुहाडी EM वेव की जी वो तुहाडे कोल एवली हुंदी है ε0 CE स्क्वायर। यह तुसीं बेटा सैमेस्टर 2 दे विच जो वाइब्रेशन एंड वेव्स असीं करते हैं उस टाइम असीं इंटेंसिटी भी निकालते हैं, तो ये जी इंटेंसिटी है वैल्यू जी है वो इत्थे तुहाडे कोल ए वाली हैगी है।
ई स्क्वायर मतलब कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ई नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर मतलब ਇਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। तो अगर तुसी एवरेज निकालना चाहते हो, एवरेज की होंदा है, अगर तुसी एक टाइम पीरियड ना निकालनी है ना एवरेज, तो 1/t करोगे और ये सारी चीज़ नू तुसी डिफरेंट इंटैग्रेट करोगे विद रिस्पैक्ट टू टाइम फ्रॉम 0 to t। इस तरह ही करते हैं ना। अगर सपोज साढ़े कोल कोई भी एक फंक्शन है, सपोज साढ़े कोल कोई भी एक फंक्शन हैगा है ना, वो y का सपोज फंक्शन है, ठीक है। और अगर तुसी एदी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हो, एवरेज वैल्यू ऑफ y इन ए बी, सपोज साढ़े कोल कोई भी ए इंटरवल हैगा ए बी, तो तुसी किद्दां निकालते हो, एदी इंटैग्रेशन करते हो फ्रॉम ए टू बी और फिर उन्हें डिवाइड कर देंगे हो b माइनस ए दे नाल। b माइनस ए इज़ योर इंटरवल लेंथ। तो अगर तुसी वन टाइम पीरियड की गल कर रहे हो तो 1/t ने तुसी डिवाइड करोगे, देखो 0 to t है, t माइनस 0 t हो जाएगा, तो यह सारी चीज़ है, यह इंटैग्रेशन है। तो इस तरीके जो कॉस स्क्वायर जो थीटा है, तो पता है जो भी कभी भी है, काफ़ी बार असीं करते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा जो असीं इंटैग्रेशन करते हैं तो की करते हैं, पहले उन्होंने कन्वर्ट करते हैं कॉस 2 थीटा वाली फॉर्म के विच। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 + cos 2a 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके नाल इत्थों तुहाडा जो इंटैग्रेशन है वो सॉल्व होंदा है। तो यह वाला जोड़ा ओवर टाइम पीरियड काफ़ी बार साडा हो चुका भी, ये मोस्टली 0 हो जाता ही टर्म, तो तुहाडे कोल सिर्फ एवरेज जी टर्म है वो तुहाडे कोल बचती है। तो इस तरीके नाल इंटेंसिटी की वैल्यू जी है तुहाडे कोल आंदी है। इस तो बाद इंटेंसिटी की वैल्यू के विच तुसीं देख सकते हो कि E0 स्क्वायर आ रहा है। तो E0 स्क्वायर का जोड़ा जो भी सीगा सारा उहदा फॉर्मूला वो तुसीं इत्थे जिहड़ा वो सी फिल कर दिता। इस तरीके नूं रीराइट उन्होंने किया होया I = I1 + I2 2 √I1 I2 cos of ϕ2 - ϕ1, जिथे I1 I2 की वैल्यूज़ है वाली है। ये इंडिविजुअल वेव्स दियाँ इंटेंसिटीज़ ने, यह तुहाडी आई जी है कंबाइंड वेव है जदों तुहाडी सुपरपोजिशन हुई हुई है एक वेव की दूसरे वेव के नाल। तो रिजल्टेंट वेव की है, रिजल्टेंट वेव मॉडिफाई हो गई है हुण, ठीक है। तो ये डिस्कशन असी नैक्सट जोड़ा वीडियो है वो मैं तुहानूं करावांगी।